ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ 1 2 3 ਅਗਸਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਨੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਸਨੋਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਟੇ ਜਾਂ ਘਰਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗ ਆਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ BP ਵਧਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਖੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ CPAP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ENT ਡਾਕਟਰ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ CPAP ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 517 ਡੈਲੀਗੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ हैं। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, UAE ਤੋਂ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾੜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣਗੇ CPAP ਔਰ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ देखना पड़ेगा ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुकरण महाजन, चिकित्सा ENT हॉस्पिटल से। आज हम अमृतसर में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जिसका नाम है IASSACON ISSACON 2025। ये ISSA एक बॉडी है जो स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया नाम की बीमारी को डील करती है। ये बीमारी क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारा सांस का रास्ता थोड़ा टाइट हो जाता है। उस टाइट रास्ते से जब हवा निकलती है तो वो एक आवाज़ बनाती है जिसको हम खराटे के रूप में सुनते हैं। खराटे हमारे आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। पर कई बार ये सांस का रास्ता इतना टाइट हो जाता है कि इसमें से ऑक्सीजन का लेवल ही कम जाना शुरू हो जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में बिताता है। उस समय उसका ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो आप सोच सकते हो कि उसके शरीर पर क्या क्या असर आएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें हार्ट के ऊपर असर आता है और ब्रेन के ऊपर असर आता है। जल्दी हार्ट की बीमारियां जैसे BP की बीमारी लगना, बॉडी के बाकी फंक्शन ख़राब होना, शुगर की बीमारी लगना, दिन में नींद आने की वजह से एक्सीडेंट होने तक का डर रहता है। जल्दी पैरालिसिस का अटैक आना, हार्ट अटैक का अटैक आना, ये सब दिक्कत इस बीमारी से आ सकती है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक नवजात शिशु से लेकर एक किसी भी उम्र के आदमी को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस बीमारी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल कम्युनिटी में और उसके बारे में चर्चा करने के लिए कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है अब इंडिया की सबसे बड़ी स्लीप कॉन्फ्रेंस बनकर सामने आई है। इसमें 500 से अधिक डॉक्टर इंडिया एंड अब्रॉड से भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत से बाहर के डॉक्टर्स को भी एज फैकल्टी बुलाया है। अमृतसर से भी बहुत से बाहर से डॉक्टर्स को भी फैकल्टी बुलाया है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास फैकल्टी के रूप में डॉक्टर्स आए हैं। हमारे पास लगभग 100 के आसपास स्पीकर्स हैं जो अपना
इस टॉपिक के ऊपर अपना सारा चर्चा कर रहे हैं। सर इसकी ये जो बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, उनको क्या कहना चाहिए? जो सॉल्व एक बड़ा एक अनक्लियर शब्द है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन में बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हमारे पास कुछ मशीन्स हैं, कुछ हमारे पास सर्जरीज हैं। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज है तो उसमें सिंपल एक्सरसाइज एंड डाइट से ही ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है किस स्टेज पर पेशेंट हमारे पास में आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, एंड डेफिनेटली इसका हल है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि ये सांस का रास्ता कहीं पर भी टाइट होने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो हाँ, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना इसका एक कारण है। पर इस समय पंजाब में जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है, तो आम तौर पर सिर्फ एक जगह पर सांस का रास्ता टाइट नहीं हो रहा होता, अक्सर ये अनेक जगह पर रास्ता टाइट हो रहा होता है। इसका ऑपरेट तो जरूरी है अगर नाक की हड्डी इसका हल ज़रूरी है, ऑपरेट हो या जैसे भी हो, हल होना ज़रूरी है। कितने सक्सेस रेट कितना है इसका? अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो नियर 100% है। वो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस रूप में हम उसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। आज आपके पास जो डॉक्टर्स पहुँचे इसके बारे में सारी जानकारी भी देंगे, वो जो डॉक्टर हैं इनमें महारत हासिल कर चुके हैं या इसके ऊपर काम करते हैं या इसका कर चुके सारा कुछ? ये मिक्स है। जो स्पीकर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं और इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, और बाकी जो काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, उनसे सीखने के लिए इस चीज़ के बारे में। जी।